Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is Edumotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is Edumotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. Hello students, so in this video we will see this example along with the third method. In the last video we have seen how to solve the simultaneous equations. In that two methods we have covered. First method is elimination by cancellation method and the second method is elimination which is by the substitution method. तो एक ही क्वेश्चन हमने दोनों मेथड से सॉल्व किया था और दोनों आंसर्स का दोनों क्वेश्चन का जो आंसर था वो सेम था हमने देखा. ओके, नाउ वी विल सी अनदर वन एग्जांपल व्हिच इज along with the one's addition and one subtraction method. So what exactly happened in this third method we will see. Okay, so again this is a simultaneous equation which is a linear equations in two variable. We have seen in last video why exactly equations are called linear equations in two variable. Okay, whenever the equation contain term having a variable power is 1, that equations are called linear equations in two variable. So these two are linear equations in two variable and whether these two equations are simultaneous or not we will see now. There is a one solution we will get which satisfies both the equations and for that purpose we will find out the solution of these equations with the one's addition and one subtraction. So first of all I will just 15x plus 17y is equal to 21. For this one is considered as equation 1. तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन इसको इक्वेशन 1 दे दिया है. उसके बाद में सेकंड इक्वेशन 17x plus 15y is equal to 11, इसको सेकंड इक्वेशन रिमार्क किया है. ठीक है, तो इसके बाद में हमें क्या करना है. Why this it is called one's addition? It means that we have to add equation 1 plus equation 2. तो यहाँ पे हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है, ऐड करना है, एडिशन करनी है. तो देखो एडिशन करते समय LHS को ऐड करेंगे और RHS को सेपरेटली ऐड करना है. सी फर्स्ट ऑफ ऑल 15x plus 17y is equal to 21 फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन 17x plus 15y is equal to 11. तो देखो एडिशन करते समय LHS में देखो क्या परफॉर्म हो जाएगा. 15 plus 17 it gives 32x plus 17y plus 15y again 32y is equal to 21 plus 11 is 32. Now in equation all the terms are divisible by 32, so I will divide the whole equation by 32. Okay, so divide by 32. तो मैं ये जो पूरे इक्वेशन है उसको 32 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, x plus y is equal to 1. तो यहाँ से मुझे एक थर्ड इक्वेशन मिल गया है. When I have performed the addition operation on the first and second equation, so I got the equation number third. Okay, so now we will perform the next one, one's subtraction. We have performed the one's addition. एक बार हमने एडिशन परफॉर्म किया दोनों इक्वेशन के ऊपर तो हमें एक इक्वेशन मिल गया है. ओके, थर्ड इक्वेशन. Now we will perform the subtraction operation on the same two equation. तो दोनों इक्वेशन के ऊपर क्या परफॉर्म करेंगे हम, subtraction. Now see equation 1 minus 2. तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में से मुझे सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन में पहले लिख देता हूँ 15x plus 17y is equal to 21. After that
माइनस 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। तो देखो मैंने सेकंड इक्वेशन लिख दिया है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे गौर करना है, while doing the subtraction the second equations all term signs are get changed। तो सब्ट्रैक्शन करते समय दूसरे इक्वेशन में के सभी टर्म्स के साइन चेंज होते हैं। 17x बिकम माइनस 17x प्लस 15y बिकम माइनस 15y प्लस 11 बिकम माइनस 11। तो देखो 17y 15x में से अगर 17x चला गया तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस 2x। ओके 17y माइनस 15y दैट इज अ प्लस 2y। ओके इज इक्वल टू 21 माइनस 11, 21 माइनस 11। तो देखो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, 10 मिल जाएगा। कितना आया, 10। ओके नाउ ऑल द थ्री टर्म्स आर डिविजिबल बाय 2, सो आई विल डिवाइड बाय द 2। तो डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 5। देखो यहाँ पे मुझे एक इक्वेशन मिल गया है, इक्वेशन नंबर 4। तो देखो अब ऑब्जर्व करो क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों इक्वेशन में वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट सेम है। तो उनमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम इक्वेशन 3, जो इक्वेशन 3 है और प्लस इक्वेशन क्या करेंगे 4। तो इक्वेशन 3 और प्लस 4 को क्या करना है, ऐड करना है। सो व्हाट इट विल हैपन, x प्लस y इज इक्वल टू 1 एंड माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 5। Okay, so what it will happen while doing the addition, one x is positive and another x is negative, so it becomes cancelled. So y plus y is equal to 2y is equal to 1 plus 5 is equal to how much, 6 is there. Now 2 is in a multiplication, when it goes in a division, in arranges, so it goes in a division, so y is equal to, it gives 3। तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई है, 3 मिल गई है। ये जो y की वैल्यू है हम किसी भी इक्वेशन में पुट अप कर सकते हैं। सो सपोज हमने थर्ड इक्वेशन में पुट अप किया y इज इक्वल टू 3, सो व्हाट इट विल गिव्स, x इज इक्वल टू 1 माइनस 3, सो x इज इक्वल टू माइनस 2 इज देयर। सो वो क्या देगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 हमें मिल जाएगा। इस तरह से जो x, y का जो है सॉल्यूशन हमें क्या मिल गया है यहाँ पे, माइनस 2, 3। सो इस तरह से वंस एडिशन एंड वन सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करके हम किसी भी इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन x, y is equal to minus 2, 3, so which satisfies both the equation। तो इस तरह से हम जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उनको इस सॉल्यूशन, इस तरह से मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में और एक मेथड जो है ग्राफिकल मेथड, जो अपने 9th क्लास में उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। सो उस मेथड से एग्जैक्टली साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। सो in today's videos we will see the graphical method to solve the simultaneous equation। तो अभी तक हमने 3 मेथड्स के बारे में देखा है कि simultaneous equations को सॉल्व करने के लिए elimination by cancellation, elimination by substitution, once addition, one subtraction। So now we will see the fourth method, which is a graphical method। कौन सी मेथड है, ग्राफिकल मेथड। तो इस मेथड से किस तरह से हम किसी इक्वेशंस को, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए वन ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो एग्जैक्टली अगर ग्राफिकल मेथड एग्जैक्टली क्या होती है वो तो पता होनी चाहिए। So what exactly mean the graphical method, or how to draw one of the equations graph on the graph paper। तो एक आध इक्वेशन का जो ग्राफ है वो किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं वो सबसे पहले सीख लेंगे। सो मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे लिखा है 2x माइनस y इज इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ है हम किस तरह से ड्रॉ करना है वो सबसे पहले सीख लेंगे। सो सी how to draw the graph of equation 2x minus y is equal to 4। तो इस इक्वेशन का ग्राफ सबसे पहले ड्रॉ करना है वो सबसे पहले देखेंगे। सो we have to follow one flow chart to draw the graph of equation। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल we have to find 4 ordered pairs।
कितने ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करने हैं, 4 ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करने हैं। फिर उसके बाद में प्लॉट द पॉइंट्स ऑन ग्राफ, तो ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट्स प्लॉट आउट करने हैं। उसके बाद में चेक द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो ये फ्लो चार्ट अगर हम फॉलो करेंगे तो किसी भी इक्वेशन का ग्राफ जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। सो व्हाट इज मीन बाय द एग्जैक्टली 4 ऑर्डर्ड पेयर्स? तो क्या होता है 4 ऑर्डर्ड पेयर्स? यानी कि अगर हमें किसी इक्वेशन का ग्राफ निकालना है तो 4 ऑर्डर पेयर यानी कि आपको उसके 4 पॉइंट्स ढूंढने हैं। सो विच आर द 4 पॉइंट्स? सो हर एक पॉइंट को क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे 4 पॉइंट्स ढूंढने हैं जो पॉइंट्स हमें ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने हैं, और जब वो 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो हमें वो ग्राफ के ऊपर हम ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद में वो जो 4 पॉइंट्स है वो अगर कोलिनियर है तो वहां से हम एक स्ट्रेट लाइन उसमें से निकाल सकते हैं। और हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन मींस व्हाट, उसका ग्राफ कैसे आता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है ग्राफ के ऊपर, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी आर सेइंग टू इट दैट लीनियर इक्वेशन। तो किस तरह से उसको ड्रॉ करना है, और व्हाई देयर इज द नीड ऑफ ओनली 4 पॉइंट्स? 4 पॉइंट्स से क्यों बोला गया है, कम क्यों नहीं बोला गया है, ज्यादा क्यों नहीं? इफ इट इज वी आर यूजिंग ओनली 1 पॉइंट, इज देयर एनी नॉट नीड टू ड्रॉ? अगर एक पॉइंट अगर लिया तो हम क्या उसमें से लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते क्या? नहीं। अगर हमने एक पॉइंट लिया, सो we know that from one point infinite number of lines can be passed. तो फिर which one line is correct? How can we identify? No. So it is not satisfied. The 1 point is there. Can we use the 2 points to draw the line? Yes, we can use the 2 points, but it might be happen that कि वही लाइन करेक्ट होगी या बोल नहीं सकते हैं। अगर फर्स्ट एक पॉइंट अगर उसमें से रॉन्ग चला गया, उसमें से कोऑर्डिनेट्स अगर रॉन्ग है तो हमें रॉन्ग लाइन मिल सकती है। If we have used the 3 points, then whether it is giving a separate line or not, अगर आपने 3 भी पॉइंट लिए, अगर उसमें से एक पॉइंट गलत रहा तो कौन सा पॉइंट गलत है वो नहीं पता चल सकता है। And whenever we are using the 4 order pairs, even though it is a 1 point is wrong, other 3 points are in a collinear. What is meant by the collinear? When the more than 2 points which are on the straight line, when the points are on the straight line, they are called collinear points. अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसमें से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली दिस सिचुएशन इज गिवन 4 ऑर्डर्ड पेयर्स, ओके। तो यहाँ पे देखो एक आपको इक्वेशन दिया गया है 2x - y = 4। इस इक्वेशन का अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो x y एंड दिस वन इज x, y। सो इस तरह से मैं एक कॉलम टेबल बना के लेता हूँ और उसमें एक चार्ट बना के हम उनके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने x कोऑर्डिनेट 0, 2, 3 और -1, ये मैंने 4 उनके जो x कोऑर्डिनेट लिए हैं और y के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो किस तरह से हम y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं, देखो यहाँ पे। सो इक्वेशन आपके सामने है, x के कोऑर्डिनेट डिपेंड्स ऑन यू, आपके मन से x के कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। किसी एक वेरिएबल के कोऑर्डिनेट्स आप आपके मन से लो, बाकी की कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे। किस तरह से लेने हैं, मैंने x के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, y के कोऑर्डिनेट्स मैं कैसे फाइंड आउट करता हूं आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी है 0, मुझे इस इक्वेशन में पुट अप करना है। सो कैसे निकालता हूं y कोऑर्डिनेट्स, देखो नाउ पुट x = 0, कहां पे पुट अप करना है, इक्वेशन में 2x - y = 4। तो देखो x = 0 पुट अप करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 2 × 0 - y = 4। तो देखो 2 × 0 कितना हो गया 0 और -y = 4, इट मींस y = कितना आया -4। तो देखो y की वैल्यू कितनी आ गई है -4। तो इसमें कैसे लिख सकता हूं 0, -4, ये मुझे फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। नाउ द सेकंड पॉइंट, नाउ x = आई हैव टू पुट द 2। तो x = 2 पुट अप करने के बाद क्या होगा, सो 2 × 2 - y = 4, ठीक है। सो 2 2 जा 4 अगर उधर चला गया तो 4 - 4 क्या हो जाएगा 0। सो y = कितना आया, देखो y = 0।
क्योंकि जीरो को कुछ साइन नहीं होती है, माइनस उधर चला भी गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो यहाँ पे कितना मिल गया 0, तो 0,2 ये उसके सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। अब थर्ड पॉइंट में देखो x इज इक्वल टू क्या पुट करना है हमें 3, सो व्हाट इट विल हैपन 2 into 3 minus y is equal to 4, 2 into 3 6, 6 उधर ट्रांसफर गया तो 4 minus 6 minus 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। सो हियर 3,2 ये हमें थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं 3,2। नाउ नेक्स्ट वन, द लास्ट पॉइंट वी विल सी x इज इक्वल टू -1 पुट अप करेंगे, देखेंगे क्या परफॉर्म होता है। 2 into -1 after that minus y is equal to 4, so 2 into -1 -2, when it transpose it become plus, तो plus 4 plus 2 कितना हो जाएगा 6, लेकिन माइनस साइड शिफ्ट होने की वजह से क्या आ जाएगा y is equal to -6। तो फाइनल पॉइंट हमें क्या मिल गया है -1, -6। इस तरह से हमें चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। अब उन पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये था x कोऑर्डिनेट पहले लिखना चाहिए, y कोऑर्डिनेट्स बाद में लिखना है, ठीक है। सो ये बन गया हमारे चारों पॉइंट्स जो है मिल गए हैं, उन चारों पॉइंट्स को हमें क्या करना है ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। तो आपको मेथड समझ में आ गई होगी कि इवन दो यू हैव कंसीडर्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ x, यू कैन फाइंड आउट द y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कंसीडर किए तो x कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। So that is depends on you whether you are considering the x coordinate or y coordinate. Okay. So now you have understand that if the x coordinate is given, how to find out the y coordinate. तो ये तो हो गया कि ग्राफ के हमने 4 ऑर्डर्ड पेयर्स ढूंढ लिए हैं। अब ग्राफ के ऊपर उनको प्लॉट कैसे करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स रिलेटेड विद द ग्राफ। तो एग्जैक्टली ग्राफ में होता क्या है। सो सी, this is a vertical line. This vertical line is called axis. What it called? This is a y axis. इसको क्या कहा जाता है y axis। जो vertical line होती है y axis, और दूसरी जो होती है horizontal line, इसको कहा जाता है x axis. This is what x axis. Okay, so horizontal is a x axis and vertical is a y axis. Sometimes इसको y और इसको y dash बोला जाता है। This is a x and this one is a x dash, ठीक है। Horizontal x axis, vertical y axis, where the two axes are intersecting each other, that is called origin. उसको कहा जाता है origin और intersecting point, और वहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, वहाँ से स्टार्टिंग होती है। ओके, उसी तरह से इम्पोर्टेंट क्या है स्केल यूज किया जाता है। हम बोलते हैं कि ग्राफ जब यूज करते हैं तो उसमें स्केल इंपॉर्टेंट होती है। वहां पे एज अ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। इस तरह से हम जो भी स्केल है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट का ही स्केल इंपॉर्टेंट लगेगा, और वो भी कैसे ऑन बोथ एक्सिस। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस के ऊपर वही ग्राफ हमें यूनिट यूज करना है, ठीक है। तो देखो फिर x एक्सिस के ऊपर RHS में जो है पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं और LHS में जो है नेगेटिव नंबर्स रहते हैं। तो देखो फिर 1 यूनिट के बाद 1 2 3 4 5 इस तरह से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो देखो यहाँ पे -1, ये -2 और -2 -3, इस तरह से हम जब लेफ्ट में जाएंगे तब नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अप साइड में देखो 1 2 3 4, सो y एक्सिस में 0 के अप साइड में पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे और नीचे क्या रहेंगे नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 लाइक दिस। सो दिस इज एग्जैक्टली ग्राफ। ये ग्राफ की बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है कि एग्जैक्टली ग्राफ में होता क्या है। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हमने ग्राफ के 4 सेक्शंस बनाए गए हैं। उसमें फर्स्ट को कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस इज व्हाट फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे जो है सेकंड, दिस वन इज अ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे आपको इस वीडियो में पूरी ग्राफ के रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन मिल रही है।
इवन दो अगर आपने कोई क्लास मिस किया हो या कुछ अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो यहाँ पे पूरा आपको मटेरियल रेडी मिल रहा है। सो ये ग्राफ जो है इंपॉर्टेंट थिंग है वो यहाँ पे आपके लिए क्लियर हो रही है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, इफ एनी पॉइंट which comes on the first quadrant तो वो कैसा रहेगा। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाले सभी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y कोऑर्डिनेट्स बोथ आर पॉजिटिव। क्यों ऐसे? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्व करो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, इन अप साइड आल्सो पॉजिटिव। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे रहते हैं? प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे? x कोऑर्डिनेट रहेगा माइनस और y कोऑर्डिनेट कैसे रहता है? पॉजिटिव, तो माइनस कॉमा प्लस रहेंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट्स में आने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो है दोनों कैसे रहेंगे? माइनस माइनस। x कोऑर्डिनेट भी माइनस रहेगा और y कोऑर्डिनेट्स भी कैसा रहेगा? माइनस। व्हाट अबाउट द फोर्थ क्वाड्रेंट? इन द फोर्थ क्वाड्रेंट व्हाटएवर द पॉइंट्स will come, that points having the x coordinate is positive and y coordinate is negative। ठीक है, तो ये प्लस माइनस ये इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। आप देखो यहाँ पे जो हमने 4 ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट किए हैं, उन 4 ऑर्डर्ड पेयर्स को यहाँ पे हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें कहाँ पे पॉइंट प्लॉट अप करना है। तो सबसे पहले देखो पहला पॉइंट जो दिया है 0, -4, यानी कि x कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है। x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज -4। एक चीज याद रखो, whenever you are getting x coordinate 0, it means that that point lies on the y coordinate। so x coordinate 0 है तो y एक्सिस के ऊपर होगा, अगर y coordinate 0 है तो वो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। ये छोटी सी बात है। समटाइम्स you will get the questions on objective based। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है when one of the point having x coordinate 0, so where it is lie, so x coordinate 0 है तो y के ऊपर रहेगा और y coordinate 0 है तो x के ऊपर रहेगा। तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट का x coordinate 0 है, यानी कि वो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? y coordinate के ऊपर। देखो -4 कहाँ पे है? यहाँ पे। so here one point came। okay, suppose I have given here label to them p q r s। तो यहाँ से आपको थोड़ा अच्छे से पता चल जाएगा कि p पॉइंट यहाँ पे कौन सा आ गया पॉइंट p है। ठीक है, उसके बाद में q पॉइंट क्या है? 2, 0। कहाँ पे? देखो 2, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है तो इसलिए वो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट आ गया, तो ये हो गया हमारा q पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में देखो थर्ड पॉइंट है 3, 2। कहाँ पे है? देखो 3, x कोऑर्डिनेट 3 एंड y कोऑर्डिनेट 2, तो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। ये इस तरह से वो पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये इस पॉइंट का नाम क्या है? r है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज लेफ्ट ओवर s पॉइंट। सो कहाँ पे आ रहा है? -1 एंड -6। तो -1 एंड -6 देखो कहाँ पे है? x कोऑर्डिनेट इज -1 एंड y कोऑर्डिनेट इज -6, तो नीचे चला जाएगा। सपोज यहाँ पे -5 है और नीचे भी -6 है, तो देखो ये -1 और यहाँ पे -6 आ गया। तो देखो ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चलता है कि ये जो चारों पॉइंट्स है एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। अगर आपने स्केल यूज करके इस लाइन को पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करो, देखो यहाँ पे पूरे चारों पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तो देखो इस तरह से हमें क्या मिल रही है? एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है और इस लाइन का इक्वेशन क्या है? 2x - y = 4। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन का ग्राफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक ग्राफ पेपर के ऊपर एक इक्वेशन का हमने ग्राफ बनाया है। तब इसका यूज ग्राफिकल मेथड में किस तरह से होने वाला है वो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हम अगर हमें 2 इक्वेशन दिए तो 2 इक्वेशन का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद दोनों के ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे और वो जो स्ट्रेट लाइंस है जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं दैट विल बी द सॉल्यूशन फॉर अस। तो वो जो ग्राफिकल मेथड है बाय यूजिंग द 2 इक्वेशंस वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एग्जैक्टली वो 2 इक्वेशंस का ग्राफ किस तरह से प्लॉट होता है और वो दोनों एक दूसरे को किस तरह से। लेकिन यहाँ पे आपको बैकग्राउंड सब इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एक आध इक्वेशन दिया तो उस इक्वेशंस का ग्राफ किस तरह से प्लॉट किया जाता है।